یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 ستمبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون مادہ سنہری متن یوحنا۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جوابی مطالعہ۔ استثناء۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر کو جن کو تو نے نہیں بنایا عنایت کرے، تو ہوشیار رہنا، یا ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے۔ تم جان فشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا، اور تو وہی کرنا جو خداوند کی نظر میں درست اور اچھا ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو، اور جس اچھے ملک کی بابت خداوند نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی تو اس میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکے۔ درسی واز بائبل میں سے خروج۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ واز۔ شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے واز کی باتیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ واز۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں، اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے۔ میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا، اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ سے قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے، اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے، اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ واز۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ مرقس۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔
फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने कहा, तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। गलतियों। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बराने के मुंतज़िर हैं। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस रूहानियत के लिए इंसानी नस्ल की एक ख्वाहिश को पूरा करती है। सिर्फ बुलंद लुत्फ ही लाफानी इंसान के नकूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हमारी तरक्की का तयन करने के लिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी हमदर्दियाँ क्या मुकाम रखती हैं और बतौर खुदा हम किसे तस्लीम करते और किसके हुक्म की पैरवी करते हैं। अगर इलाही मोहब्बत हमारे लिए करीब तर, अजीज तर और ज़्यादा हकीकी बन रही है, तो फिर मादा रूह के सपुर्द हो रहा है। जिन चीज़ों का हम ताक़ुब करते हैं और जिस रूह को हम आश्कार करते हैं, वो हमारे नुक्ता नज़र को जाहिर करती है और हमें दिखाती है कि हम क्या फ़तह कर रहे हैं। कामिल अक़ल कामलियत पैदा करती है, क्योंकि खुदा अक़ल है। गैर कामिल फ़ानी अक़ल अपनी मुशाहबतें पैदा करती है, जिनसे मुतल्लिक़ दानिशमंद इंसान ने कहा, सब बातिल है। ये मादी वजूदियत के भयानक नकली नताइज के मुकाबले में ख्यालात की रूहानियत और रोज़मर्रा की मसीहत पसंदी है। ये निचले रुझानात और नापाकी और शहवत परस्ती की ज़मीनी कशिश के मुकाबले में
पाकीज़गी और सदाकत है, जो हकीकतन क्रिश्चियन साइंस की इलाही इब्तदा और काम की तस्दीक करती है। क्रिश्चियन साइंस की फतूहात गलती और तबाही पर मुश्तमिल हैं, जिनसे गुनाह, बीमारी और मौत के अफसोसनाक अकायद पैदा होते हैं। अयूब ने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। बशर अयूब के ख्यालात को फैलाएंगे जब मादे की फर्जी तकलीफ और खुशी सबकत रखना तर्क करती है। फिर वो जिंदगी और खुशी, दुख और शादमानी के झूठे अंदाजे लगाएंगे और वो बेगर्जी, सब्र से काम करने और उस सब को फतह करते हुए जो खुदा की मानद नहीं है, मोहब्बत की नेमत हासिल करेंगे। एक ऊंचे नुक्ता नज़र से आगाज करते हुए एक शख्स खुद साख्ता बढ़ता है, जैसा कि रोशनी खुद बगैर किसी कोशिश के रोशनी को खारिज करती है, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इलाही साइंस जिंदगी और जहानत की फर्जी मादी बुनियादों पर अपने खास हमले का काम करती है। ये बुत परस्ती को महकूम करती है, दूसरे देवताओं, दूसरे खालकों और दूसरी मखलूक़ात पर ईमान को क्रिश्चियन साइंस के मुकाबले झुकना होगा। ये गुनाह के नताइज को बेनकाब करती है, जैसे बीमारी और मौत में दिखाया गया है। इंसान रूह के फिरदौस में, आदमियों के माबैन पलौटे की मेरास में क्रिश्चियन साइंस के खुलने वाले दरवाजे से कब गुजरेगा? सच्चाई वाकई राह है। कदीम मसीही मौलज थे, मसीहत का ये अंसर खो क्यों गया है? क्योंकि हमारा मजहबी निज़ाम कमोबेश हमारे तिब्बी निज़ामों के ज़ेर अतात हो गया है। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। मादे के अपने ही मुखालफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हमआहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के निज़ाम रूहानी क़ुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बायस मादी फ़हम साइंस का ग़ुलाम बनाया जाता है और मजहब मसीह की मानद बन जाता है। मादी दवा खुदा की क़ुव्वत को मनशियात से तब्दील करती है, हत्ता कि इंसानी ताकत से भी, ताकि जिस्म को शिफा दे सके। वो फ़लसफ़ियाना निज़ाम जो निजात के लिए इलाही असूल यस्सू बतौर इंसान पर, जो खुदा का शिफा देने वाला नुमाइंदा है और उसकी साइंस की बजाय किसी शख्स पर अमल पैरा होता है, वो खामोश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सच्चाई उनकी फर्जी क़ुव्वत की मादी दवा को मुनक़सिम करती और रूह को बालादस्ती से मलबूस करती है। क्या तहजीब बुत परस्ती की एक आला किस्म है कि इंसान को जिस्म पर फेरने वाले ब्रश, ऊनी कपड़ों, गुस्ल करने, ग़िज़ा, वर्जिश और हवा के आगे झुकना चाहिए? इलाही ताकत इंसान के लिए इतना कुछ करने के काबिल नहीं जितना वो खुद के लिए कर सकता है। ख्यालात के नक्शे कदम मादी नुक्ता नज़र से बुलंद उठते हुए बहुत सुस्त हैं और मुसाफिर की लंबी रात की जानब इशारा करते हैं, मगर उसकी हजूरी के फरिश्ते, वो रूहानी इल्हाम जो हमें बताते हैं कि रात कब की गुजर गई और दिन निकलने को है, उदासी में हमारे निगहबान होते हैं। साइंस जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को तब्दील करती है और इस तब्दीली के बायस बशर हस्ती के बुनियादी हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। फिर लामुहल्ला ये सवाल उठता है, अगर मादी हवास इशारे करें कि इंसान अच्छी सेहत रखता है, तो क्या वो इंसान असल में बीमार है? जी नहीं, क्योंकि मादा इंसान के लिए कोई शराइत नहीं रख सकता। और क्या वो असल में ठीक है अगर हवास कहते हैं कि वो बीमार है? जी हाँ, वो उस साइंस में ठीक है जिसमें सेहत मामूली है, बीमारी गैर मामूली है। सेहत मादे की हालत नहीं बल्कि अक्ल की हालत है, और ना ही मादी हवास सेहत के मौजू पर काबिल यकीन गवाही पेश कर सकते हैं। शिफाइया अक्ल की साइंस किसी कमज़ोर के लिए ये होना नामुमकिन बयान करती है, जबकि अक्ल के लिए इसकी हकीकतन तस्दीक करना या इंसान की असली हालत को ज़ाहिर करना मुमकिन पेश करती है। इसलिए साइंस का इलाही असूल जिस्मानी हवास की गवाही को तब्दील करते हुए इंसान को बतौर सच्चाई में हमआहंगी के साथ मौजूद होता ज़ाहिर करता है, जो सेहत की वाहिद बुनियाद है। और यूं साइंस तमाम बीमारी से इनकार करती, बीमार को शिफा देती, झूठी गवाही को बर्बाद करती और मादी मंतक की तरदीद करती है। सूजन कम करने, रसौली को ख़त्म करने या जिस्मानी बीमारी का इलाज करने के लिए
मैंने दीगर सभी अदना इलाजों की निस्बत इलाही सच्चाई को ज़्यादा कवी पाया है, और क्यों नहीं, जबकि अक्ल यानी खुदा ही सारी वजूदियत का मंबा और लाजमी शर्त है। किसी शख्स को ये फैसला करने से कबल के बदन मादा खराब हो चुका है, उसे पूछना चाहिए, तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या मादा खुद बात कर सकता है, या क्या ये जिंदगी के मामलात को समझता है? मादा जो ना दुख सह सकता ना खुश हो सकता है, उसका दर्द या शादमानी के साथ कोई हिस्सा नहीं, बल्कि फ़ानी अक़ीदे का ऐसा हिस्सा ज़रूर है। फ़ानी इंसान फ़ानी नहीं रहेगा जब वो ये जान लेता है कि मादा कभी वजूद बरकरार नहीं रख सकता और खुदा को तबाह नहीं कर सकता, जो इंसान की ज़िंदगी है। जब ये समझ लिया जाता है तो इंसान मज़ीद रूहानी हो जाएगा और जान लेगा कि कुछ भी हड़प करने के लिए नहीं है, चूँकि रूह खुदा ही सब कुछ है। क्या हो अगर ईमान खपत हो, खुदा इंसान के लिए उसके ईमान से ज़्यादा है, और जितना हम मादे को या उसके कवानीन को कम तस्लीम करते हैं, उतना ज़्यादा ही हम लाफानियत की मलकियत रखते हैं। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है तो शऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी। मासिवाए खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे, और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। सवाल: हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब: मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है, क्योंकि खुदा हाकिम कुल है। इसलिए सब कुछ लामुतनाही अक्ल और उसका लामुतनाही इजहार है। रूह लाफानी सच्चाई है, मादा फ़ानी गलती है। रूह अब्दी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबीह, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।